Right. So, welcome you all again in our computer class. Topic again same, table formation. We will continue, and I want to show the output of our program, how it will look when we run this program into the web browser, that is Internet Explorer, right? That was our program, and now you can see the output of it. First of all, we decide a caption for the table, means its main title, and then we decide some headings, that was the serial number, name and grades, etc. After that, 3 records we have entered in this table, and finally when we stop, when we finished our last lecture, then we discussed about the border of the table and the color of it, right? So now I am again going to the program, means coding portion. This is our coding portion which we prepared in Notepad. Today we will discuss about some formatting, and the formatting include the background color of the table and the specific color, background specific color of every record you can change. Now, first of all, we will change the color of the table, border color. हमने पहले change किया, but this time we want to change the background color of the table. Means कि जहाँ data show हो रहा है, उसके backpack में जो output हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, जैसे अभी हमें सिर्फ white color नजर आ रहा है बैक साइड में, तो इसकी जगह हम कलर करना चाहते हैं पूरी टेबल पे, तो उसके लिए हमें क्या कमांड देनी होगी, लेट्स नो इट. जैसे बैकग्राउंड कलर के लिए हम नॉर्मल भी यूज करते थे बॉडी के अंदर बीजी कलर, इसके अंदर भी हम लोग यही यूज करेंगे, बीजी कलर COLOR इज इक्वल टू, सपोज आई एम गोइंग टू यूज येलो, will look nice. उसको सेव करना है कंट्रोल S से, या फिर आप फाइल में जाकर इसको सेव ऑप्शन कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिफ्रेश इट. नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज. इट इज वेरी इजी कमांड which you can apply on the table, right? So in this way we can fill the background color in our table. I am repeating this command so that you can understand very well. We have to add some more attribute. This is attribute of table tag. ये table tag के ही attributes हैं, जैसे हमने यूज किया border, फिर हमने यूज किया border color, और this time we use BG color यानी background color. ठीक है, तो ये 3 के 3 हमने जो यूज किए हैं, these are attributes of it. उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ऊपर हेडिंग कलर तो हमारा अलग आ जाए, ये वाला तो चलो येलो ठीक है, लेकिन वी वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डाटा, जो इसके अंदर जो नीचे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटा हमने फिल किया है, जैसे 1 2 3 नेहा, शिक्षा, रियांश, A+B+B+, इसके पीछे का बैकग्राउंड वी वांट टू चेंज विद अनदर कलर, राइट? तो इसको करने के लिए आपको उस इंडिविजुअल रो के अंदर जाना पड़ेगा यहां पर, और यहां पर आप इसका बीजी कलर ट्राई कर सकते हैं. लेट्स ट्राई, बिकॉज आई एम यूजिंग पिंक कलर. मैंने सेव किया, रिफ्रेश करते हैं. लुक, ऊपर हेडिंग चेंज हो गया, बाकी कलर चेंज हो गया. आपको जिस भी रो में जाके चेंज करना है, यू कैन मेक चेंजेस. जैसे अभी हम चलते हैं किसी और रो में, ये TR हमने हेडिंग के अंदर किया था, अब दूसरा TR इस वाले डाटा में कर देते हैं, BG कलर
Suppose this time I am using orange color. Again refresh. Look. After that, I want to change the third one with green color. Same pattern we will follow. Where is the last option? Number 3. Here it is. Now BG color equal to, suppose green. You want to change with green color. Save it, and after it we have to refresh as usual. Now you can see the colorful table in front of you. In this way you can beautify or format your table. So in this session we learned that how we can change the background color of entire table, or record wise background color we can also change. Now I want to know, is it clear to all or any query regarding it? Please ask any question if you want regarding it. Let me know, is it clear? Yes, sir. एक ही स्टूडेंट ने बोलना होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे हैं. So please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anshika, Anshika, is it clear? Yes, sir. Chavi Mehta. Yes, sir. Chavi Mehta. Yes, sir. I am asking randomly, right? Vansh Chauhan. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yadeep. Yes, sir. Okay. Okay, let's move further. Kabir. Yes, sir. Clear, beta? Good. Let's move on. Now our next command, which we have to cover, its BG color is over. Then background color okay, now background color. If you want to change the color of the web page, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी यहां इसको दोबारा बोलने का क्या मतलब है कि हम लोग इसके अंदर यहाँ एक कमांड में फिर दोबारा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको इसको यूज करने के बाद, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद, यू विल feel the tremendous change in the output of your web page. We apply. Just wait. Yes, here we are. And the background color, we all know that we have to define this tag in the body tag because it is the attribute of it. Now, again, background. BG color is equal to which color we can take in it. Suppose we used pink because it is a light color, right? Let's see, it's pink. Save and refresh. Now you can observe the change. Now it is looks like a professional web page. Okay, so now we will move on for some more formatting effects on the table, and first of all, that is alignment. ये टेबल के अंदर हम लोग करेंगे कि इसकी अलाइनमेंट हम चेंज करेंगे. जैसे अभी ये वेब पेज के लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है, तो इसको अगर हमें सेंट्रली अलाइन करना है, देन वी कैन चेंज इट. टेबल के अंदर ही हम जाएंगे, टेबल का एक और एट्रीब्यूट लेंगे, अलाइन.
और ये अलाइन लेने के बाद हम इसको यूज करेंगे सेंटर, CENTER, सेंटर। सेव मैंने किया। लेट्स फील द चेंज। लुक नाउ, इट इज नाउ जस्ट सेंटर ऑफ द web page. After that, now student, I want to discuss with you the alignment of the data. इस डाटा को हमें अलाइनमेंट करना है। इस डाटा को हम अलाइन कैसे करेंगे, या फिर इस डाटा के अंदर हम दो ऑप्शन और ले सकते हैं। वो दो ऑप्शन है, नंबर 1 इज सेल पैडिंग एंड नंबर 2 इज सेल स्पेसिंग। Here I want to clear what is the meaning of cell padding and after that cell spacing. Look student, cell padding is what? जब भी कोई डेलिकेट चीज हम पैक करते हैं किसी चीज में, सपोज कि कोई ग्लास का कोई सामान है, जब भी हम उसको पैक करते हैं तो हम उसको बॉक्स में डालने से पहले उसके चारों तरफ उसकी पैडिंग कर देते हैं किसी भी सॉफ्ट चीज से, ताकि अगर वो हिलती है या सरफेस पे लगती है तो टूट ना जाए। ऐसे ही ये जो डाटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके चारों तरफ कितना स्पेस बचे ताकि ये इजीली हमें नजर आए, उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। और सेल स्पेसिंग क्या है? सेल स्पेसिंग ये जो बीच में आपको रोज नजर आ रही है, जैसे सीरियल नंबर से लेके नेम के बीच में जो गैप है, ये जो लाइन लगी हुई है, देखो ये हर जगह आपको नजर आएगी, ठीक है ना। ये जो बीच के बॉर्डर पे साइडों के बॉर्डर हैं और जो बीच का स्पेस जो है, ये जो गैप बीच में है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, दिस इज स्पेस। तो सेल स्पेस, सेल के बीच का स्पेस, उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं, राइट। तो नाउ दिस इज द टाइम टू अप्लाई दीज कमांड्स एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग के अंदर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे वो हम टेबल के अंदर ही हम करेंगे, क्योंकि टेबल मेन हमारा जो मेन टैग है वो हमारा क्या है, टेबल है, उसी के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे सेल स्पेसिंग, सॉरी सेल पैडिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हमें एक साथ लिखना होता है। ऐसा नहीं कि सेल आपने अलग दे दिया, पैडिंग अलग लिख दिया, तो उस वक्त ये काम नहीं करेगा। और इसको आपने मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया, मान लीजिए आपने नंबर दे दिया इसको 10, ठीक है, इसको आपने सेव किया। लेट्स फील द चेंज। लुक नाउ, दिस इज द चेंज। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसके ऊपर की तरफ, साइडों में, यानी चारों तरफ, एक डाटा के चारों तरफ जो स्पेस था वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग, कि जैसे हमने ये बीच में कोई सामान डालना है, मान लीजिए नेम नाम का कोई एक ग्लास का बना सामान है और ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने इसको इस तरह से लगा दिया ताकि चारों तरफ इसके स्पेस बन जाए। मैं इसको फिर दोबारा से चेंज करके दिखाता हूं आपको कि जब ये कमांड नहीं थी तो ये कैसा नजर आ रहा था और उसके बाद ये कैसा नजर आएगा, राइट। प्लीज ऑब्जर्व द चेंज। शुरू में इस तरह से था डाटा, आपको ये लगा होगा कि टेबल का साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज नहीं हुआ है किसी भी चीज का, सिर्फ जो इसकी स्पेसिंग थी इसके चारों तरफ की, एक डाटा के चारों तरफ की स्पेसिंग वो इंक्रीज हो गई है। इस कारण से आपको इसका साइज बड़ा नजर आएगा, अदरवाइज इसका फॉन्ट साइज सब सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नाउ आई एम अप्लाइंग द चेंज अगेन। मैं सेव किया इसको और उसके बाद रिफ्रेश कर दिया। लुक नाउ, सभी हमारे फॉन्ट साइज वगैरह सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो चेंज इन इट, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज जस्ट अराउंड द डाटा। ये स्पेस हमारा बढ़ गया है, इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। हमने इसको एक हिसाब से पैड कर दिया है, मीन्स कि इसको हमने पैक कर दिया किसी भी चीज से थोड़ा गैप बना के, राइट। अब दूसरी चीज है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। Second command is cell spacing. This time I want to increase the gap between the cells. Now same place we have to define
आफ्टर सेल स्पेसिंग सेम वैसे ही लिखना है, इक्वल टू कर दिया है, इसको भी मान लीजिए मैंने दे दिया 10, सेव किया इसको मैंने कंट्रोल एस से, और यहां जाके इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं. लुक नाउ एंटायर सिनेरियो इज चेंज्ड, एंटायर आउटलुक इज चेंज्ड. नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज बिटवीन द सेल, द स्पेस इज इंक्रीज्ड, राइट. तो ये दो कमांड थी हमारे पास. इस कमांड को मैं फिर दोबारा आपको दिखा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट कमांड है. जब भी आप पेज बनाएंगे, जब मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दूंगा, जैसे कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटर. सो अरे ओ भाई क्या बोल रहा है तू? mute yourself. Sakunpal, please mute yourself. Otherwise, I will request Jitendra sir to remove you immediately. Okay sir. Okay. So I will tell you as I told to one student that was. कितनी मिनट पहले गेम खेली? Sarthak, mute yourself. Okay. Now, please let me know. Is it clear to all? Our next topic is height and width. By default, the size of the table is a large as the data that is entered into it, right? So you can change the overall height and width of the table to get the desired size. अब क्या होगा कि अभी हम इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग पूरे टेबल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, इसको विड्थ वाइज भी चेंज कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लगे कि आपकी टेबल छोटी है और वेब पेज बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सो यू कैन adjust the size of your table with the help of these two commands, that is height and width. तो ये हम कहाँ पे जाके हम कर सकते हैं कि एक तो हम इसको टेबल के अंदर से भी हम कर सकते हैं, टेबल के साथ ही एक और एट्रीब्यूट हम यहाँ यूज कर लेंगे, that is height, HEIGHT, height equal to, मान लीजिए इसको मैंने बढ़ा दिया 300 कर दिया सपोज, राइट, और विड्थ को मैं और बढ़ा देता हूं, दैट इज 400. इसको सेव करते हैं और इसके आउटपुट पे देखते हैं क्या होगा. ये देखो, ये और थोड़ी बड़ी हो गई है टेबल, ठीक है ना. तो इस तरह से अगर आप इसको चेंज करते हैं, सपोज मैं इसको हाफ कर देता हूं, इसको 200 कर देता हूं और इसको मैं 150 कर देता हूं, उस वक्त देखते हैं क्या चेंज आएगा. नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज. ठीक है बेटा, तो इस तरह से एंटायर टेबल को हम लोग उसको रिसाइज कर सकते हैं जैसे मर्जी. अब इसके अंदर एक कमांड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कराने का मैं करा सकता हूं, लेकिन ये आपके लिए छोड़ रहा हूं कि कैसे हम डाटा को अलाइन कर सकते हैं. जैसे अब अगर आप देखो तो डाटा इज लेफ्ट साइड अलाइंड, 1 2 3 नेहा, शिक्षा, रियांश, A plus, B plus, B plus. I want that the data should come in the center of the cell. ठीक है, तो ये कमांड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और ये जब भी हम नेक्स्ट मीटिंग लेंगे तो उस वक्त सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछना है कि व्हाट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन, राइट. तो ये सॉल्यूशन आपने सोच के रखना है, जो मैं आपको एक ये टास्क दे रहा हूँ या एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ. ठीक है बेटा, तो इसके बाद ये हाइट विड्थ हो गया. एक और हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हाइट विड्थ को लेके ही, हम स्पेशली रो के अंदर भी कर सकते हैं, टेबल रो के अंदर. यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, हाइट वर्ड यूज करेंगे. यहां पर हम देंगे इसको थोड़ा सा चेंज, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 80, और एक और अगर हम दें इसमें विड्थ
यहां मैंने दे दिया मान लीजिए 70, ठीक है। ये देखो स्पेसिफिक चेंज आ गया, यहां से इसकी हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इंडिविजुअल अगर कोई एक रो आपको चेंज करनी है, टेबल रो अगर आपको चेंज करनी है, तो यू कैन मेक चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट विद दीज कमांड्स। सिर्फ इसमें हमने क्या किया, अगर पूरी टेबल को हमने इनलार्ज करना था तो हमने टेबल टैग के अंदर डिफाइन किया इन एट्रीब्यूट्स को, और अगर हमें किसी रो में करना था तो हमें टेबल रो के अंदर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा फर्क है, अदरवाइज कमांड को यूज करने का सिंटेक्स और जो उसका मेथड है दैट विल बी सेम, राइट, वो हमें सेम रखना होगा, तो तभी आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये हाइट एंड विड्थ नाम से जो एक प्रॉब्लम थी ये मैंने आपकी दूर की है। अब एक कमांड और आ सकती है आपके सामने कि आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर में बैकग्राउंड कलर अलग आए, नेम के अंदर बैकग्राउंड कलर अलग आए, और ग्रेड के अंदर बैकग्राउंड कलर अलग आए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, या इसमें बीच में आप चेंज करना चाहते हैं इसका कलर, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हो कि जहां पर भी आपने एक हेडिंग यूज किया है, मैं आपको दिखाता हूं इसमें करके, हमने कहा किया था हेडिंग यूज, ये रहा इधर, इस कमांड में हेडिंग हमने यूज किया है, ये पूरी कमांड है। अब यहां पर जहां पर भी आप ये चाहते हो कि ये कलर चेंज हो जाए, तो उसके आगे ही, जैसे हम चाहते हैं नेम का कलर चेंज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल लिख देंगे बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, और अभी कौन सा कलर है, लेट मी चेक, दिस इज पिंक एंड आई वांट टू चेंज विद द suppose the green, right, then we have to change it with the green color, green, save it, and after that when you press refresh then you can observe the change. Is it visible to all? I hope it is visible, right? So in this way you can change make the change with background, just wait. Okay, now come back to the point, some disturbance was there. Okay, now in this method you can change the color of any background color of any particular cell as well, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी कमांड्स थी जिससे आपकी टेबल एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल में कन्वर्ट हो जाती है, जो आप यूज कर सकते हो। एक इसके अंदर अलाइनमेंट्स हैं, वो आपने करके देखनी है, बुक में दी हुई है, और जो जिन स्टूडेंट के पास बुक है दे कैन मेक प्रैक्टिस, अदरवाइज यू शुड परचेज योर बुक, क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद कोई प्रोजेक्ट वर्क भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, वो HTML से रिलेटेड ही मैं देने वाला हूँ, जो अभी बात हो रही है हमारी, तो इसलिए आपके पास अपनी बुक होना बहुत जरूरी है। तो स्कूल के अंदर बुक्स हैं हमारे पास, अगर आपको बाहर से अवेलेबल होती हैं तो ले सकते हो, अदरवाइज तो स्कूल के अंदर है हमारे पास बुक्स, आप आके लेके जा सकते हो, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट बेटा? Any problem in this command? No, sir. No, sir.